Hi students, we are going to start with simple harmonic motion. Synopsis में हम लोग आगे बढ़ते हैं. We are going to discuss compound pendulum today. Suppose एक stone है, एक पत्थर है, any rigid body is there. हमने यहाँ पर पकड़ा एक पत्थर है, which is hinged about point S. इसका axis of rotation ऐसे है, and it is rotating in the vertical plane. Can I say ये उसका mean position रहेगा ना, because इस point पे net force 0 होगा, up is equal to down. अब हमने आपको बताया था टाइम पीरियड अगर कंपाउंड पेंडुलम का निकालना है तो सबसे पहले हमको उसका मीन पोजीशन निकालना पड़ेगा. मीन पोजीशन इज दिस पोजीशन ओनली व्हिच इज देयर बिकॉज़ नेट फोर्स यहाँ पर 0 है. अब इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके हमने छोड़ दिया. तो एट दिस पॉइंट इज द डिस्प्लेस्ड पोजीशन. दिस पोजीशन इज द डिस्प्लेस्ड पोजीशन. Now since you know this is the displaced position, ये center of mass है, ये point of suspension है. Let the distance between the center of mass and the point of suspension be L. The moment of inertia about point S will be IS. The moment of inertia about the center of mass is ICM. ये सबको नाम तो पता ही है. हमने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया by an angle थीटा और छोड़ दिया. तो कोई बता सकता है mg का कौन सा टुकड़ा इसको वापस लेकर आएगा? You know, if this is theta, this will also be theta. So this component will become mg cos theta, and this component is going to become mg sin theta. So mg sin theta is providing the necessary restoring force to this stone, to this rigid body, to come back to its original position. ये बोलो ना भाई. So can I say how much is the restoring torque? The restoring torque will become force into perpendicular distance. It will become mg sin theta into L. बोलो yes or no with a minus sign because theta is directed outward and force is directed inward. But I know that sin theta is theta. Sir, why sir? Because theta is small and it is expressed in radians. तो हम लोग पहले कर चुके हैं. So tau r will become equal to minus mg theta into L. Yes or no? Everyone is understanding. Can I say torque is equal to I alpha is minus mg L into theta. So alpha is going to become minus mg L by I into theta. अच्छा सर ये लीनियर SHM है क्या ये एंगुलर SHM है? सर ये एंगुलर SHM है. लीनियर SHM का पहचान was minus omega square x. एंगुलर SHM का पहचान is alpha is minus omega square theta. तो आप यहाँ पर देखो since it is coming in this format, so alpha will become minus omega square theta. So omega square is going to become mg L by I. So omega is going to become under root of mg L by I. So time period is going to become, by time period आपको पता ही है, is 2 pi by omega. It will become 2 pi root of I by mgl, but it is I about which point? About the point S. ये है फॉर्मूला हमारा. And what is L? L is the distance between the point of suspension and the center of mass. अच्छा IS को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? IS will become ICM plus mass of the body into distance square. सर कौन सा थियरम कौन सा थियरम कौन सा थियरम? This is parallel axis theorem. And what is L? L is the distance between the center of mass and the point of suspension. Are you all understanding what's happening? I hope you all are getting it. So ये है theory of the about the compound pendulum. अब इसी के बेसिस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं. एक रिंग है which is hinged about one end. यहाँ पर रिंग पर हमने इसको hinge कर दिया. Mass m and radius r is there. और इसको हमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया. कह रहे ऐसे ऑसिलेट करेगा लाइक अ कंपाउंड पेंडुलम. इसका टाइम पीरियड हमको फाइंड करना है. दैट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन. टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको क्या आया था? 2 पाई आया था ना भाई, रूट ऑफ आई एस बाय एम जी एल. यस और नो? अच्छा सबसे पहले ये तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कंपाउंड पेंडुलम के लिए. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज आई एस? आई एस विल बिकम ICM plus mass into distance square from the center of mass. और आपको मालूम है center of mass बीचों बीच होगा यहाँ पे. This is center of mass, this is point S.
So moment of inertia about this point S will become ICM. ICM for a ring is mr square plus mass into, can I say this is your L, ये डिस्टेंस है ना भाई. So यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. बट कैन आई से L is nothing but equal to R, बोलो. So this is nothing but R, so it will become 2mr square. It will be moment of inertia about the tangent perpendicular to the plane. आपको सबको मालूम है IS की जगह. अच्छा सर, what is this L? L हमने पढ़ा था, the distance between point S and the center of mass will become equal to R. Yes or no? यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे so T will become 2 pi अंडर रूट IS की जगह हो जाएगा 2mr square अपॉन mgl. बट mgr, बट L is R ना, तो mmr. तो टाइम पीरियड इज गोना बिकम 2 पाई रूट ऑफ, भाई बोलो, ये हो जाएगा 2r बाय g. सो टाइम पीरियड इज गोना बिकम ओके 2 पाई अंडर रूट 2r बाय g. Are you understanding what's happening? Yes sir. अब और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. आपसे कह रहा है एक रॉड है which is hinged about one end. ये हमारा क्या बन गया? ये S बन गया. अच्छा, यूनिफॉर्म रोड है. यूनिफॉर्म रोड है मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इधर किधर रहेगा? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना रहेगा? अगर ये लेंथ L है, यहाँ से डिस्टेंस रहेगा, हाँ बेटा, L/2. सो कैन आई से एक्चुअल L इज नथिंग बट L/2. ओके, और इसका मास m है और लेंथ हमने क्या पकड़ा? L है. यस और नो सर? और कह रहा है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकंड्स, मतलब इट इज बिहेविंग लाइक अ सेकंड्स पेंडुलम. ये दिया हुआ है, क्लियर है? आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड. फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड. फिर से एक बार देखते हैं. देयर इज अ रॉड व्हिच इज हिंज्ड अबाउट वन एंड. इट इज मूविंग लाइक अ कंपाउंड पेंडुलम. हमने उसको ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो परफॉर्म SHM. कह रहा है उसका टाइम पीरियड जो है दैट इज 2 सेकंड्स. दैट वन कंप्लीट ऑसिलेशन टेक्स प्लेस इन 2 सेकंड्स. ओके, और इसका लेंथ इज L, मास इज m. तो आपको फाइंड करना है इसका लेंथ. अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम आपको अभी फार्मूला मालूम है, 2 पाई अंडर रूट IS by mgl. What is IS? IS is the moment of inertia about this point and this is about end, so it will become ml square by 3 about one end of the rod. मालूम है सबको, टेंशन नहीं है. अच्छा, what does this L stand for? This L is standing for distance between the center of mass and the point of suspension. This is not L. This is L/2 in my case. बोलो. This is not L. This is L is which is taken in the formula, but it is actually L/2. अभी ये काम करते हैं, इसमें वैल्यू में डाल देते हैं. So 2 pi under root, ये हो जाएगा IS will become ml square by 3. Yes or no sir? Upon mg L/2 mm. एक L और एक L कैंसिल हो गया. So it is going to become 2 pi root of, ये भाई 2L by 3G. 2L by 3G. सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 2L by 3G. अच्छा भाई, T कितना दिया आपको? 2 सेकंड दिया, तो T will become 2 pi 2L by 3G. ये 2 उड़ा दो. Okay, can I square both sides? So if you square both sides, what is going to become बेटा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा pi square into 2L by 3G. अच्छा, G और pi square approximately सेम होते हैं. So L will become equal to what बच्चा? 3/2. That is 1.5 meter. I hope you all are understanding what is happening. तो फॉर्मूला यही था, आपको इसी में मैनिपुलेट करना है और उसका डेरिवेशन अभी हमने आपको दे दिया है. ओके सर, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं SHM के डेली लाइफ में. There is a wire of length L. ओके, इसके नीचे एक मास हमने लगाया. वो मास हमने खींचा वायर डिस्टेंस ऑफ छोटा L. That is the change in length, और छोड़ दिया. फिर से There is a wire of length L. मास M लगा दिया यहाँ पर. हमने इसको मेन पोजीशन से खींच के छोड़ दिया. कितना खींचा? L खींचा. Can I say it will perform SHM with a definite time period? Yes or no? So पूछा है कि इसका definite time period कितना है वो निकालना. अच्छा, सबसे पहले देखना है SHM है कि नहीं है. क्या है SHM है? SHM का पहचान है F is minus KX. तो इसको F is minus KX के पहचान में हमको डालना पड़ेगा. You know the formula, Young's modulus is F big L upon A small l. Elasticity चैप्टर में हमने पढ़ा है. Yes or no? So F क्या हो जाएगा बेटा? YA by L into small l.
बोलो, कैन आई राइट दिस माइनस साइन, बिकॉज एल नीचे है तो रीस्टोरिंग फोर्स तो ऊपर है ना, रीस्टोरिंग फोर्स मेरा बच्चा ऊपर है जो वापस लेकर जाएगा ना इसको. कैन आई से एफ इज माइनस ऑफ एल, एल नीचे है तो फोर्स ऊपर है. कैन आई से दिस इज ऑफ द फॉर्मेट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, where x is the extension, यहाँ पर extension L है, so what will be k equal to बेटा y a by m, yes or no, okay. या तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं बेटा f is m a is minus, okay, f is m a which is minus y a by l into small m, यहाँ से आया देखो f is m a, what is m, m is mass attached, a is the restoring acceleration, y a by l into l, तो a will become minus y a by ml into l. a is minus omega square x everyone, तो omega square कितना हो जाएगा आपके पास y a by ml, so omega हो जाएगा under root of y a by ml. Yes or no sir? So time period is going to become 2 pi by omega, that is 2 pi by, ये हो जाएगा ml by a. I hope you all have understood what is there. So this is the time period of this system. Okay students, now इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एसेशन हम लोग लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल 2. एक क्यूब है और लेंथ है, बेस इज फिक्स्ड, इसको चिपका दिया. इसके ऊपर सपोज हमने एक कॉइन रख दिया और मास है, और यहां से हमने टैंजेंशियल फोर्स लगाया इसकी तरफ ऐसे. तो जब इसके ऊपर टैंजेंशियल फोर्स लगा के हम छोड़ देंगे तो कैन आई से दिस इज गोइंग टू परफॉर्म एसेशन लाइक दिस. और उसके साथ में ये जो मास m है ना कॉइन का, दैट विल आल्सो परफॉर्म एसेशन. फिर से एक बार क्यूब है फिक्स्ड एट द बेस, इफ आई अप्लाई टैंजेंशियल फोर्स, कॉइन इज केप्ट ऑफ मास m, can I say this whole system is going to perform simple harmonic motion about this line, this point, this surface. तो उसका फ्रंट व्यू मैंने ये बनाया, दिस इज द सरफेस ABCD, फ्रंट सरफेस. हमने यहां से टैंजेंशियल फोर्स लगाया, लेंथ इज L, कैन आई से लेंथ इज द लेंथ फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर. जब हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये पॉइंट A will shift to A dash and B will shift to B dash by a distance of small l. Can I say this is the displacement? तो ये ऐसे हो जाएगा, और जैसे हमने छोड़ा इट विल कम बैक एंड परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द सरफेस. यस और नो सर? यही सेम चीज हमने ओके इलास्टिसिटी में पढ़ी है इन द नेम ऑफ शियर मॉड्यूलस. उसको कहते थे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. यस सर, प्लीज रिवाइज. ईटा याद आ रहा है कुछ? ईटा इज ओके क्या था? shear stress upon shear strain. What was shear stress? F by A. Stress is F by A, मालूम है सबको. Shear strain. Shear strain was defined as lateral displacement of the layer upon distance from the fixed layer. यहाँ पर हमने याद रहे नॉर्मल फोर्स नहीं लगाया, जिसको कहते हैं टैंजेंशियल फोर्स. तो टैंजेंशियल फोर्स के कारण जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज स्मॉल l and the distance from the fixed layer is capital L. Shear strain will be tan theta. Tan theta will become L by L. पढ़िए जाके इलास्टिसिटी भाई. So shear strain is ये बोलो. So यहाँ से eta will become what? F big L A small l. तो F क्या हो जाएगा यहाँ से? टैंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा? हाँ भाई बेटा, ईटा A by capital L into small l. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ओके, सो ये चीज है. सो कैन आई से दिस इज F इज M A. हम लोग इसकी बात कर रहे हैं. यस और नो? जब छोड़ देंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो वापस आ जाएगा, वापस लेकर आएगा इसको. L ऐसे है बट इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा वापस इसको लेकर आएगा, पूरे सिस्टम को वापस लेकर आएगा. So can I say this will be minus eta A by capital L into small l.
So A will become equal to minus eta A by M into capital L into small l. Can I write this as A is minus omega square x? Where this is the extension, this is the displacement, and this will be omega square. So omega square यहाँ से आएगा eta A by M into capital L. So omega is going to become what, sir? Eta A by ml. Root of that. भाई एक बार आपको ओमेगा मिल गया तो आपको टाइम पीरियड में मिल जाएगा. व्हाट इज टाइम पीरियड का फॉर्मूला? 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ ml by eta A. I hope you all are understanding how to do it. Okay, तो ये चीज आपको आना चाहिए बिना इस चीज के which is reference from elasticity. ये चीज आपको आना चाहिए. इधर से F निकाला and this F जब हम छोड़ देंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स के रूप में आ जाएगा. ये तो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बट जैसे छोड़ देंगे अंदर वही रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, इसलिए माइनस साइन लगाया. You will get A and you will get the time period in terms of this. Okay, we are going to start with motion of a liquid in V-shaped tube. तो V-shaped tube है, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2. Initially, the level of the liquid in both the arms are the same. That means there is no pressure difference. बराबर है? देखो. ओके, ये लेवल इज द इनिशियल लेवल, मतलब इतना जितना लिक्विड यहाँ पर है उतना लिक्विड यहाँ पर है, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस यहाँ से यहाँ पे सेम है. अब इफ यू डिप्रेस दिस पार्ट बाय y, कैन आई से लिक्विड इन दिस पार्ट विल आल्सो राइज बाय y, बिकॉज मास सेम है, वॉल्यूम सेम है. भाई जितना वॉल्यूम यहाँ से कम होगा उतना वॉल्यूम यहाँ पे चढ़ जाएगा ना. ओके, तो कैन आई से इफ द डिप्रेशन इज y in this along this line, so the rise will also be y along this line. बोलो, क्लियर है सबको? because volume same है, and volume is area of cross section into length, area of cross section into length. अब उसके कारण यहां पर एक प्रेशर डिफरेंस बन जाएगा. पहले इनिशियली द प्रेशर डिफरेंस वाज 0, तो ना यहां से कोई दबा रहा है ना यहां से कोई दबा रहा है, पर यहां पर ये पार्ट ऊपर चढ़ गया ना, एंड ये पार्ट डिप्रेस हो गया. तो आप देख सकते हो प्रेशर डिफरेंस यहां पर डेवलप होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. ये लेवल और ये लेवल के बीच में प्रेशर डिफरेंस आएगा, एंड ये प्रेशर डिफरेंस के नीचे ये नीचे जाएगा, ये ऊपर चढ़ेगा, फिर ये नीचे आएगा, ये ऊपर चढ़ेगा. इट विल कीप ऑन हैपनिंग. कैन आई से इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन? सर व्हाई सर? सिंपल हार्मोनिक मोशन का शर्त यह है f is minus kx. आप प्रूव करके बताओ, ऐसे अपने आप थोड़ी हम मान लेंगे. सो आई विल कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस, फिर हम लोग उसका रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि इज इट प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, यस और नो सर. तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस. अच्छा, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्कूल में. प्रेशर डिफरेंस इज रो जी एच, वेयर एच इज द हाइट डिफरेंस. तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हाइट डिफरेंस इज h1 प्लस h2. अरे बोलो भाई. सो प्रेशर डिफरेंस इज रो जी h, बट h बिटवीन द हाइट्स इज h1 प्लस h2. माइनस मत कर देना, बिकॉज ये लेवल से ये लेवल तक का डिफरेंस इज h1 प्लस h2. आप देख सकते हो इतना डिफरेंस आ गया ना हाइट में. अरे यस और नो, इतना हाइट h1 इतना हाइट h2, तो ये डिफरेंस आ गया h1 प्लस h2. अच्छा, सो हाउ टू राइट h इन टर्म्स ऑफ y? सो इफ दिस इज h, this is y and this is theta. अरे yes or no? So यहां से अगर हम sin theta निकालेंगे तो sin theta is going to become h by y. क्लियर है? Yes or no? So h will become y sin theta. So delta p is going to become rho g. h1 is y sin theta 1 plus y sin theta 2. So delta p is going to become rho g y sin theta 1 plus sin theta 2. But force is pressure into cross sectional area. So restoring force जो बनेगा, that is change in pressure into cross sectional area. So can I write this as rho g y into a sin theta 1 plus sin theta 2 force, and this force is restoring force. तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने इसको डिप्रेस करके छोड़ दिया, restoring force will be upward and यहाँ पर will be downward.
तो डिप्रेशन नीचे है बट फोर्स ऊपर है। सो कैन आई से यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, एफ आर विल बिकम माइनस रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इंटू वाई, एफ इज एम ए will become minus rho GA sin theta 1 plus sin theta 2 into y. So A is going to become minus rho GA by M, where M is the mass of the liquid which is performing oscillation. पूरा मास नहीं, जितना ये मास है ना, जो मास ओके एक्स्ट्रा मास है जिसको डिप्रेस हुआ है और जो ऊपर चढ़ रहा है, जो SHM कर रहा है वो मास लेना है हमको। यस और नो? ये नीचे वाला लिक्विड तो एसएचएम कर ही नहीं रहा है ना, इतना पार्ट तो एसएचएम नहीं कर रहा है। जो एसएचएम कर रहा है उतना ही मास लेना है, मतलब इतना भाग का मास लेना है हमको। यस और नो? ऑलरेडी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 इनटू y, सो a विल बिकम, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, रो जी ए बाय m sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, सो t is 2 pi by omega, so t will become 2 pi by omega। को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 पाई, ओमेगा विल बिकम रूट ऑफ दिस थिंग। यस और नो सर? तो उसको लिख सकते हैं हम लोग, ये उल्टा हो जाएगा बेटा। ये कैसे हो जाएगा? ओके, दिस विल बी m, m ऊपर जाएगा, रूट ऑफ m अपॉन रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोलो एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? सो दिस इज the time period of a V-shaped tube when it is depressed and rising in one of the arms. Yes or no sir? अब इसी में एक फॉर्मेट है, अगर ये V-shaped ट्यूब नहीं होके ये U-shaped ट्यूब होता, थोड़ा इसका इजी फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये V-shaped नहीं होता, ये U-shaped ट्यूब होता। हाँ बेटा, तो आपको तो पता है इनिशियली द लेवल विल रिमेन द सेम बिकॉज़ प्रेशर डिफरेंस इज 0। अरे बोलो, तो इनिशियली इतने ही लेवल तक होगा। अरे यस और नो सर? व्हाट इज हैपनिंग सर? ये इनिशियली यही लेवल तक है। सपोज यू डिप्रेस दिस बाय अ हाइट ऑफ y, सो दिस विल राइज आल्सो टू अ हाइट ऑफ y। बोलो, तो लेवल डिफरेंस कितना आ गया भाई? 2y का, जो हमने किया था। अच्छा आप बता सकते हो थीटा 1 और थीटा 2 हमने क्या पकड़ा था? थीटा 1 वाज दिस एंड थीटा 2 इज दिस, बट इस केस में तो दोनों 90 है, तो कैन आई पुट दिस 90 ओवर हियर? तो ये हो जाएगा sin 90 प्लस sin 90, कितना होता है भाई? 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो टाइम पीरियड ऑफ दिस विल बिकम 2 पाई अंडर रूट m बाय रो जी ए इनटू 2। एंड सर व्हाट इज दिस m? दिस इज द मास ऑफ द ऑसिलेटिंग लिक्विड। पूरा मास नहीं, खाली ऑसिलेटिंग लिक्विड। ऑसिलेटिंग लिक्विड कौन सा भाग है? इतना भाग है, 2i वाला भाग है। अरे ये ऊपर चढ़ा, ये नीचे आ गया ना भाई। यस और नो? सो इतना भाग रहेगा ना which is performing SHM। are you understanding? यस और नो? अरे भाई ये नीचे गया और ये ऊपर चढ़ गया, तो 2i डिफरेंस आया, तो मास विल बिकम दैट थिंग। मास विल बिकम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, and volume will be area into its corresponding length. How much is the corresponding length मेरा बच्चा? Corresponding length is क्या? 2y। Yes or no? तो क्या मैं इधर लिख सकता हूँ इसको? तो इसको हम लोग अगर पुट करेंगे, t will become 2 pi root of m, m की जगह रो a 2y upon रो g a 2, तो रो a 2 cancel, so time period will become 2 pi root of y by g, where y is how much you are displacing है मेरा बच्चा। और अगर h डिस्प्लेस किया तो y की जगह आप लिख सकते हैं h by g। yes or no? अरे भाई इसको h पकड़ा y की जगह पे, तो लिखेंगे 2 pi under root h by g, not y by g, पर यहाँ पर हमने इसको y ले लिया है। yes or no? so I hope you are understanding in u tube and v tube। yes or no? Next example of SHM is that when a partially submerged floating body is slightly pressed and raised, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिलेंडर और मास है, is floating inside a liquid where the depth inside the liquid is h। बराबर है, it is floating। Since it is in floating condition, इसको पकड़ते हैं केस 1।
कैन आई से इन फ्लोटिंग कंडीशन, आपको फ्लूइड्स में पढ़ाया जाएगा, weight will become equal to upthrust. What is weight equal to, beta? Upthrust. What is weight? mg. M is mass of the mass of. Upthrust is v rho liquid into g. V rho liquid. What is v? V is v immersed. ये फॉर्मूला याद रखना, फ्लूइड्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको. So mg will become v immersed. Can I say v immersed will be area of the base into height immersed? So A into H into rho liquid into G. So G वैसे ही कैंसिल हो गया, तो M का वैल्यू कितना आया? A H rho L. इसको पकड़ते हैं इक्वेशन नंबर 1. दिस इज फ्लोटिंग कंडीशन. अब तक SHM नहीं कर रहा है भाई, फ्लोट हो रहा है. अब आपने इसको और प्रेस किया बाय अ डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन बाय y. आपने इसको इतना दबा दिया y. जैसे छोड़ेंगे, कैन आई से इनिशियली वेट एंड अपथ्रस्ट वर द सेम. जैसे आपने y दबाया, एक एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट आया, बिकॉज ही इज ऑक्यूपाइंग दैट वाटर का स्पेस ना. तो जितना पानी का स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा उसके हिसाब से अपथ्रस्ट आएगा. सो कैन आई से एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट विल प्रोवाइड द नेट रीस्टोरिंग फोर्स. यस और नो सर? द एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट ड्यू टू दिस y, क्योंकि ये तो जगह लिया जा रहा है ना उसका. पानी बोल रहा है मैं कहाँ जाऊं, तो जो बचा हुआ पानी है, जो इतना पानी है, उसको धक्का मारेगा, बाहर जाओ, ये मेरी जगह है. सो कैन आई से द एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट इज V immersed rho liquid G. बट यहां पर V immersed कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? एक्स्ट्रा विल बिकम एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. हाइट कितना दबाया हमने? y इनटू rho liquid G. कैन आई से दिस विल एक्ट एज द रीस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट इज एक्टेड वेयर सर? अपवर्ड्स. सो displacement is down, restoring forces up. बोलिए. So can I say F is ma? What is m? M is the mass of the liquid. Yes or no? So यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? m into a is minus a y rho l g. So a will become minus a y rho l g upon m. Yes or no? Yes or no? But m की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा? a h rho l. Because who is performing SHM? M is the mass of the whole cylinder. Yes or no sir? यही तो पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, तो इसका मास ही तो लेना है. What does M stand for? Mass of the particle which is performing SHM, and mass of the particle which is performing SHM is the cylinder. So A will become minus a y rho l g upon m. M की जगह लिख सकते हैं a h rho l. a h rho l. तो a rho l कैंसिल हो गया. Yes or no sir? बोलो. यहां पर a का वैल्यू कितना मिला हमको? a का वैल्यू मिला माइनस g बाय h इंटू वाई. कैन आई से a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, x की जगह y, तो ओमेगा स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम g बाय h. सो ओमेगा इज गोइंग टू बिकम रूट g बाय h. सो टाइम पीरियड इज गोइंग टू बिकम 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट h बाय g. बोलो भाई. सो आपको ये सब डेरिवेशन जो लोग हैं वो याद कर सकते हैं, वो लोग याद करें. अगर नहीं याद होते हैं तो आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट तो याद रखना ही है कि अगर आप एक सिलेंडर को अंदर डुबाएंगे बाय डिस्टेंस ऑफ y, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन SHM हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट h बाय g. नाउ बेटा वी आर डिस्कसिंग मोशन ऑफ बॉल इन अ बॉल. सो एक बॉल है, रेडियस r है, इसका सेंटर इधर किधर हवा में होगा, रेडियस r है. एक बॉल है ऑफ मास n, उसको हमने यहाँ से छोड़ दिया. तो आई नो दैट अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो इट इज गोइंग टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन एंगुलरली. एंगुलर है तो अल्फा टॉर्क सब लगाना पड़ेगा. यस और नो? तो हमको मालूम है ये mg है, सबको पता है. तो ये हो जाएगा कि अगर ये थीटा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो ये भी हो जाएगा mg cos theta and mg sin theta. I know that the restoring force is mg sin theta, but restoring torque will become force into perpendicular distance. So can I say the restoring torque is going to become what sir? Minus mg sin theta into r. Theta is upward, force is inward, torque is inward, तो torque वापस लेकर जाएगा तो minus sin आएगा. Yes or no? बोलो. But this theta is very very small, so torque will become minus mg r into theta. बट टॉर्क को लिख सकते हैं मेरा बच्चा I alpha will become equal to minus mg r into theta.
IA of this particle is mass into distance square will become mr square. बोलिए particle है about this point it is oscillating, so mr square into alpha minus mgr into theta. m cancel, एक r cancel, तो alpha will become minus g by r into theta. Can I say alpha is minus omega square theta, so omega square is going to become g by r. So omega will become under root of g by r. Bolo, so time period is going to become what sir? Time period is going to become 2 pi by omega will become 2 pi root of r by g. What does r stand for? Radius of the ball. ठीक है बेटा? Okay students, now we are going to start with motion of a ball in a tunnel through the earth. तो एक ball है of mass small m and mass of the earth is capital M. पूरा mass जो है capital M and radius r है, बराबर है क्या? Can I say this ball is located at a distance of y from the center of the earth? And the gravitational force which will be directed on the ball will be inwards. पता है ना आपको? अच्छा, कितना gravitational force act करेगा? Gravitational force exerted will become G, small m. कैपिटल M नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा m dash, because I told you कि बाहर का जो पट्टी है that will not exert any force upon distance square. Distance will become y square. I am deriving something. End में जब result आ जाएगा आप याद कर लेना. Can anyone tell me what is this m dash? M dash को लिख सकते हैं mass per unit volume of the whole thing into volume of the shaded part, because यहाँ पर है ना, तो इतना ही हिस्सा force exert करेगा. 4 by 3 pi y cube. बोलो भाई. So m की जगह लिख सकते हैं, m dash की जगह लिख सकते हैं m into y cube by r cube. इसको इधर पुट कर लो. So fg will become g small m capital M y cube by r cube into y square. ये y square और ये कट गया, तो fg will become, अच्छा ये रिस्टोरिंग फोर्स की तरह, बिकॉज y अवे है, ये नजदीक है, तो माइनस gm बाय r क्यूब इनटू y. f को लिख सकते हैं बेटा ma will become minus gm by r क्यूब इनटू y. So acceleration is going to become minus gm. Yes or no? अच्छा gm को लिख सकते हैं gr square will become m r क्यूब इनटू y. तो ये r स्क्वायर और ये कट गया, तो एक्सेलरेशन कितना आया बेटा? माइनस g by mr into y. यस और नो? अच्छा एक और एक बात भाई, ये जो m है, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर शायद. ये m और ये m तो वैसे ही कट जाएगा, बराबर है. ये m तो आएगा ही नहीं ना, देख लो ना भाई. तो ये क्या बन गया? ये पूरी चीज क्या बन गई? ओमेगा स्क्वायर will become g by r. So omega is going to become under root g by r. So time period is going to become 2 pi root of r by g. What is r? Radius of the earth. उसको जब calculate करेंगे answer will be 84.6 minutes. So whenever a small m ball of mass m oscillates through the tunnel of the earth, the time period of oscillation will become 2 pi under root r by g. That is 84.6 minutes, and it will perform SHM. I hope you all are understanding what's happening.